हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। Tarun was a mediocre student. His grades could barely satisfy his parents, and he was not a good singer, dancer, painter, or even an actor. He always thought of himself as the black sheep of the family. तरुण एक साधारण छात्र था। उसकी श्रेणियां माता पिता को बहुत मुश्किल से संतुष्ट करते थे और वह एक अच्छा गायक, नर्तक, चित्रकार या एक कलाकार भी नहीं था। वह हमेशा अपने आप को परिवार का एक नकारा सदस्य सोचता था। His elder brother, who was pursuing a degree in engineering from a reputed college, always made the family proud. But Tarun was never good at anything like that. उसका बड़ा भाई, जो कि एक माने हुए महाविद्यालय से इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की, हमेशा परिवार को गौरवान्वित करता था, किंतु तरुण उस प्रकार के चीज़ों में कभी अच्छा नहीं था। However, he was blessed with the strange of a great athlete. He was an excellent runner. He would run for hours, be it day or night. Whenever he felt sad and lonely, he exhausted himself by running, thus releasing all his pent-up emotions. तथापि उसे शक्ति के साथ एक महान खिलाड़ी का आशीर्वाद था। वह एक श्रेष्ठ धावक था। वह घंटों दौड़ सकता था, चाहे वह दिन हो या रात। जब कभी वह दुखी और अकेलापन महसूस करता, वह अपने आप को दौड़ दौड़कर थका लेता, इस प्रकार अपनी दबी भावनाओं को मुक्ति देता। At times, he would miss his school bus and would then run to the school, which was 5 miles away from his home. He just had one dream to become the fastest runner in the world. कई बार वह अपनी स्कूल बस को छोड़ देता और तब स्कूल दौड़कर जाता, जो कि उसके घर से 5 मील दूर था। उसका केवल एक ही सपना था, दुनिया में सबसे तेज धावक बनना। Tarun did not know how to achieve his dream. On one hand, his parents hated his running and wanted him to concentrate more on his studies, which he never did. तरुण नहीं जानता था कि कैसे अपने स्वप्न को साकार करेगा। एक तरफ उसके माता पिता उसके दौड़ने पर नफरत करते थे और चाहते थे कि वो अपना ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करे, जो कि उससे कभी नहीं किया। On the other hand, he belonged to a middle-class family, and Tarun knew that to achieve his dream, he needed an intensive training, the amount which was well beyond his family's reach. दूसरी ओर वह एक मध्यम श्रेणी परिवार से था और तरुण जानता था कि अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए उसे गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, एक राशि जो कि उसके परिवार की पहुंच से बाहर थी। When Tarun failed in his terminal examination, his father was very angry with him. His friends too made fun of him. It was a day he wanted to erase from his life, and so he took running. He ran all round the park. जब तरुण अपनी अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो उसके पिता उस पर बहुत क्रोधित हुए। उसके मित्र भी उसका मजाक उड़ाने लगे। यह एक दिन था जिसे वह अपने जीवन से भुला देना चाहता था और इसलिए वह दौड़ने लगा। वह पार्क के चारों ओर दौड़ा। The sun beat down to check his rage, but nothing could stop Tarun. After about an hour, he was fully exhausted, and his fury having subsided, he threw himself on a bench and started to pant. सूर्य ने अपनी तेज को कम करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी तरुण को रोक नहीं सका। 1 घंटे के बाद वह पूरी तरह थक चुका था और उसका क्रोध भी कम हो गया। वह अपने आप को बेंच पर फेंकता सा बैठा और हाँफने लगा। Suddenly he heard a voice. "What is it, son?" Tarun looked
to his left, and there sat a man of about 60. I failed in 2 subjects, Tarun replied in a depressed tone. अचानक वह एक आवाज़ सुना। यह क्या है बेटे? तरुण अपनी बाईं ओर देखा और वहाँ एक लगभग 60 वर्ष का व्यक्ति बैठा था। मैं 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो गया, तरुण ने हताश भरी आवाज़ में उत्तर दिया। The man smiled sympathetically and said, "Life is full of ups and downs, boy. By the way, I am Ram Narayan, and you are one of the best runners I have ever seen." वह व्यक्ति सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराया और बोला, जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। वैसे मैं राम नारायण हूँ और तुम एक श्रेष्ठ धावकों में एक हो, मैंने हमेशा देखा है। Ram Narayan, are you the same Ram Narayan who won an Olympic medal in the 400-meter race in the 1960? Tarun could not hide his excitement. Yes, Pat, came the reply. Tarun was dazzled. राम नारायण, क्या तुम वही राम नारायण हो जिसने कि 1960 में 400 मीटर दौड़ में ओलंपिक पदक जीता था? तरुण अपने उत्साह को छिपा ना सका। हाँ, फिर थपथपाते हुए उत्तर दिया। तरुण चकित था। Son, I have been watching you for the past 45 minutes, continued Ram Narayan, and I see a good future in you. Tarun could not help but blush. बेटा, मैं तुम्हें पिछले 45 मिनट से देख रहा हूँ, राम नारायण बोलना जारी रखे, और मैं तुम में अच्छा भविष्य देखता हूँ। तरुण कुछ न कहकर बस सिर्फ लज्जित हुआ। All you need to do is keep that passion burning in you and never give up. Have you joining some training school? तुम्हें बस इतना करने की आवश्यकता है। तुम में जो भावावेश है उसे अपने में ज्वलंत बन रखना है और कभी भी नहीं छोड़ना है। क्या तुम कोई प्रशिक्षण स्कूल से जुड़ सकते हो? Tarun smile turned to distress. A training school is very expensive, sir, and I am unemployed, said Tarun, feeling happy that he could joke even in this circumstance. But Ram Narayan seemed pretty serious. I can train you if you want, but I have one condition. तरुण की हंसी हताश में बदल गई। प्रशिक्षण स्कूल बहुत खर्चीला है सर, और मैं बेरोजगार हूँ, तरुण ने कहा, खुशी महसूस करते हुए कि इन परिस्थितियों में भी वह मजाक कर रह सका। किंतु रामनारायण अधिक गंभीर लग रहे थे। मैं तुम्हें प्रशिक्षण कर सकता हूँ यदि तुम चाहते हो, किंतु मेरी एक शर्त है। What condition? Tarun's voice showed a sense of urgency. There is a race on the Children's Day at the Nehru Stadium. Children of your age are competing there. If you win that race, I will start training you, said Ram Narayan. क्या शर्त? तरुण की आवाज़ कहने का आशय जानने की शीघ्रता में देखा। बाल दिवस के अवसर पर नेहरू स्टेडियम में दौड़ है। तुम्हारी उम्र के बच्चे वहाँ प्रतिस्पर्धा करेंगे। यदि तुम वह दौड़ जीतते हो, मैं तुम्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर दूंगा, राम नारायण ने कहा। That is no big deal, thought Tarun. I will, sir, he heard himself say with complete conviction. Fine, boy. It is my job to get your entry in the race, and remember, you're to win it. Tell me, what is your name? Asked Ram Narayan. Tarun Kapoor, sir. वह कोई बड़ी शर्त नहीं है, तरुण सोचा। मैं करूँगा सर। वह स्वयं को पूर्ण यकीन के साथ कहते सुना। बहुत अच्छा लड़के, यह मेरा कार्य है कि तुम दौड़ में प्रवेश लो, और याद रखो, इससे जीतना तुम्हारा। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? राम नारायण ने पूछा। तरुण कपूर, सर। Tarun, I will meet you here after 5 days to give you your participation card. All the best, said Ram Narayan and left. तरुण, मैं तुम्हें वहाँ अब 5 दिनों बाद मिलूँगा, तुम्हें तुम्हारा भाग लेने के कार्ड देने। सब अच्छा हो, राम नारायण ने कहा और चले गए। The next day brought a new ray of hope. Tarun got up early, had milk, and before his mother could finish her query on what he was up to, he ran out and went to the Nehru Stadium to check the details of the race. He was very happy indeed. अगला दिन आशा की नई किरण लाया।
तरुण जल्दी उठ गया, दूध पिया और इससे पहले कि उसकी माँ प्रश्न पूरा कर पाती कि क्यों वह जल्दी उठा, वह बाहर दौड़ गया और दौड़ की विस्तृत जानकारी के लिए नेहरू स्टेडियम चला गया। वह वास्तव में बहुत खुश था। Question 1. How did Tarun release his pent-up emotion? Answer. Tarun exhausted himself by running, thus he released his pent-up emotion. क्वेश्चन 1. तरुण अपनी दबी हुई भावनाओं से कैसे मुक्त होता था? उत्तर. तरुण दौड़कर अपने आप को थका लेता था। इस प्रकार वह अपनी दबी भावनाओं से मुक्त होता था। Question 2. Whom did Tarun happen to meet in his state of depression? How did that person console him? Answer. Tarun happened to meet with Ram Narayan, an Olympic medal winner. He patted on back and said, "I see a good future in you." प्रश्न 2. अपनी हताश की अवस्था में तरुण की मुलाकात किससे हुई? उस व्यक्ति ने उसे कैसे सांत्वना दी? उत्तर. तरुण की मुलाकात एक ओलंपिक पदक विजेता राम नारायण से हुई। वह पीठ थपथपाए और बोले, मैं तुम में एक अच्छा भविष्य देखता हूँ। Question 3. What suggestion did Ram Narayan give? On hearing the suggestion, what was Tarun's reaction? Answer. Ram Narayan gave suggestion to join training school. On hearing, Tarun smiled, then it turned to distress. प्रश्न 3. राम नारायण ने तरुण को क्या सुझाव दिया? सुझाव सुनकर तरुण की क्या प्रक्रिया थी? उत्तर. राम नारायण ने प्रशिक्षण शाला में दाखिला का सुझाव दिया। सुनकर तरुण मुस्कुराया, फिर वह मुस्कुराहट निराशा में बदल गई।